Hello friends, welcome you all once again to Manual Hotel Management channel. So guys, today in this particular video we are going to see when you should start your preparations for Hotel Management 2024. So guys, जो 2023 के examinations है वो हो चुके हैं 14th of May को. Now all the aspirants जिनको इस साल देना था या फिर जो अपने अगले साल की preparations या फिर अगले साल जो NCHM CET का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं वो अगर आप टारगेट कर रहे हो, then guys this video will be for you and watch this video till the end. सो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि अच्छा अगर आपको करना है प्रिपरेशंस एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो गुड IHM, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स विच यू नीड टू अवॉइड while मेकिंग द प्रिपरेशंस फॉर 2024. But before that guys, if you are watching this video on Manure Education channel, then guys definitely please subscribe to Manure Hotel Management channel, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जामिनेशंस अपडेट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड बाकी सारे होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक वीडियोज़ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NCHM CET 2024, देन गाइज Manure हैज़ लॉन्च द बैच for 2024 which is starting from this month only. In live lecture batch, the students will get live lectures, classroom lectures. If you are going for the offline lectures, then also classroom lecture is there. Books will be getting, shortcut tricks, doubt class, recorded video lectures, topic test, mock test, WhatsApp group. You'll be added in the WhatsApp group. 10,000 plus questions will be solved throughout your preparations, and mentorship guide, which is very important while preparing for 2024 entrance examinations. So आप अगर इनमें से कोई भी entrance examination target कर रहे हो for IHM, ECHAT, IHM औरंगाबाद और any other entrance examinations for 2024, then guys do call on this number 8828581455 and talk to the counselors right away. Get all your doubts solved. And if you are from Mumbai, you can also visit Dadar, Borivali, Vasai and Thane centers. So आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. Okay guys, first of all, if you are targeting for your NCHM CET 2024, then you must be clear with your goal and which particular colleges you are targeting. That will depends, on that basis it will depend that what kind of preparations you need to get started with, right? So if you are targeting like top colleges, IHM Pusa, IHM Mumbai, if you are targeting, then definitely you need to work hard. You need to be in like top rankings like 300, 500, right? Only then there are chances that you will be able to make it to these top institutes. So if your goal is clear, if you clear with your college, your target, like okay, in this particular college only I'll need the admission. So ideal time to start the preparations is 10 to 12 months, right? Because इतना टाइम तो आपको लगेगा ही to cover up the syllabus, to do the revision, to do the practice, because everything is must. So this is the ideal time that has been considered as a good time to get started with the preparation. So आपका जो है cover up भी हो जाता है. Simultaneously there are many students जो अभी अपने 12th में हैं. So guys please let me know into the comment sections कितने स्टूडेंट जो है वो अभी 12th के साथ ही प्रिपरेशंस कर रहे हैं. तो डेफिनेटली उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो हम बनाएंगे कि आप 12th के साथ भी कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, राइट? सो 12th के साथ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देन तो आप इट इज़ वेरी मस्ट दैट आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर लो. बिकॉज जब बाद में आपका जब बोर्ड आएगा, लाइक आफ्टर फैब है ना, जो आपका 12th का बोर्ड का जो प्रेशर है वो भी आप पे आएगा, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आपको दोनों ही प्रिपरेशंस को कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट अगर आपने अभी से अपनी प्रिपरेशंस लाइक 10 to 12 मंथ बिफोर स्टार्ट कर चुके हो, देन वहाँ पे आपका जो है बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हो चुका होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, देन वहाँ पे आप एक ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट? सेकेंड, मेक द प्रिपरेशन इन वन डायरेक्शन गाइस. तो बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक कर लेते हैं कि वो उनको ना तो कभी एक डायरेक्शन मिल पाता है, ना ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रिपरेशंस को अपने कंटिन्यू रख पाते हैं, ठीक है? रीज़न बिहाइंड दैट कि वो मल्टीपल सोर्सेस से अपने प्रिपरेशंस करने का ट्राई करते हैं. उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कल क्या करने वाले हैं या फिर अभी क्या कर रहे हैं. जैसे आपने यूट्यूब वीडियो वगैरह देख लिया है ना, एक वीडियो आपने देख लिया किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, बट फिर उसके बाद क्या, उसके बाद उसमें कितने टॉपिक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, कल उसको अब नेक्स्ट उसको आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है. तो वो डायरेक्शन के बिना आप कहीं एक पर्टिकुलर गोल पे आप रीच नहीं कर सकते, है ना? तो डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रिपरेशंस करना है, एंड देयर द कोचिंग एंड द मेंटर जो है वो आपकी हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशंस कराने के लिए, ठीक है?
टारगेट टॉप कॉलेजेस रैंकिंग। हमेशा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले ही ये डिसाइड कर लो कि कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो आप, एंड उसमें रैंकिंग कितनी है, ठीक है। उसके हिसाब से जो है आपका प्रिपरेशन, आपका कितना हार्डवर्क आपको चाहिए, आपको कहाँ फोकस करना है, ठीक है, दैट यू विल बी क्लियर। अदरवाइज सिर्फ प्रिपरेशंस करके तो आप कितना भी स्कोर ला लोगे, लेकिन वहाँ पे आपका जो रैंकिंग है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू डिसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, टेक गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर्स, ठीक है। अगर आपने तो कभी प्रिपरेशंस पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम यू आर मेकिंग द प्रिपरेशंस, देन मेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज आप एक पूरा साल जो है अपना वहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने उसको लाइटली लिया, वहाँ पे आपने उसको इनफ जो आप कर सकते थे, अगर आप मेंटरशिप ले सकते थे वहाँ पे वो नहीं ली। सो ड्यू टू दैट रीज़न देयर आर चांसेस कि आप एक पूरा एक साल आप वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है आपको। तो बहुत ज़रूरी है ताकि वो नौबत ना आए, टेक मेंटरशिप या फिर टेक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव एनीवन जिन्होंने कुछ किया है या फिर जिनको पता है इस बारे में, यू कैन कॉल अस, विल डेफिनेटली गाइड यू, ठीक है। आप हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हो सर कि कैसे करना है, दिस इज़ माई बैकग्राउंड, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई स्टार्ट। सो विल ट्राई टू गिव यू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका बैलेंस करो आपका 12th बोर्ड एंड एंट्रेंस प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये आपका तभी हो सकता है जब आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो सही टाइम पे स्टार्ट की है तो। अदरवाइज तो फिर वहाँ पे जब अगर आपने अभी नहीं की है, आप लाइटली ले रहे हो, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, विल सी नो, तो एग्जामिनेशन 3-4 महीने भी पहले पढ़ लेंगे तो, बट 3-4 महीने पहले एग्जामिनेशन के आप 12th कब पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि 12th का पढ़ाई भी आप 2-4 महीने पहले करोगे, इसका भी 3-4 महीने पहले करोगे, दोनों कैसे हो सकता है ना। सो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो पाता है स्टूडेंट से जब वो अपनी प्रिपरेशंस को बिफोर एंड स्टार्ट करते हैं, सही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, तभी वो बैलेंस कर पाते हैं। एंड इवन इफ यू आर नॉट इन योर 12th बोर्ड, अगर 12th नहीं भी है, स्टिल अगर आपको लग रहा है कि है ना आपको उतना टाइम लगेगा, तो आपको प्रिपरेशन जो अपने सही टाइम पे स्टार्ट करनी होगी, तभी आप टॉप IHMs या फिर 500 की रैंकिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस एक बेसिक स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वैसे स्ट्रेटेजी अगर आप कोई फॉलो नहीं कर रहे हो, सो ये भी स्टूडेंट्स बहुत बार मिस्टेक कर लेते हैं कि ना तो उनके पास कोई स्ट्रेटजी होती है, ना मेंटरशिप, ना उनका कोई कंसिस्टेंसी होता है प्रिपरेशंस करने का। बस वो आज कुछ कर लिया, फिर तो कुछ नहीं किया, फिर बाद में वो थोड़ा सा वो कर लेते हैं। सो वैसे प्रिपरेशंस करना फिर वो कोई आपका बनता नहीं है वहाँ पे कुछ, ठीक है। वहाँ पे आपको भी नहीं पता हो क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, बस एग्ज़ाम दे दिया है एंड विल सी कि क्या होने वाला है, ठीक है। सो वहाँ पे फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 500 की रैंकिंग, क्योंकि और स्टूडेंट जो है जो टारगेट कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंस हैं, जिन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो की है, सो वहाँ आपको कम्पीट करना उन लोगों से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो स्ट्रेटजी कैसे फॉलो कर सकते हैं, एक बेसिक स्ट्रेटजी है जहाँ पे हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तो आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि ये जब तक अगर आपके क्लियर नहीं है, जैसे बेसिक्स मतलब बेसिक में क्या आ गया, आपका बेसिक कैलकुलेशंस, आपका बेसिक लॉजिक, ठीक है, बेसिक इंग्लिश के जो चीज़ें हैं, बेसिक जहाँ पे आपको वो तो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप आगे के जो क्वेश्चंस आप पूछने वाले हैं वहाँ पे आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो बेसिक एंड फंडामेंटल जो है बहुत ज़रूरी है आपका वो स्ट्रांग हो, ठीक है। जब आपका बेसिक एंड स्ट्रांग होता है तो आप सिलेबस अच्छी तरीके से कर पाते हो। जो भी सिलेबस आपका है आपका NCHM CET में, वो सिलेबस को आप अच्छे से करना है आपको। जैसे ही पर्टिकुलर टॉपिक वाइज या फिर आप सब्जेक्ट वाइज आपको लग रहा है कि सिलेबस आपने वो टॉपिक वगैरह क्लियर कर लिया है, देन उसको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस करने के बाद खाली रुकना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे विद इन टाइम में, टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा आपसे। या फिर आप, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे ना, क्वेश्चन आपके चेंज होते रहेंगे। सो वो प्रैक्टिस से ही आएगा कि अगर आप इनफ प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस आपने कर ली है, देन टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसा अपने गट्स पे नहीं जाना है कि हाँ चलो मुझे तो ये आ गया है, मैंने तो कर लिया है, बुक में तो मेरा सॉल्व हो रहा है। वहाँ पे आपको बुक्स में एग्ज़ाम नहीं देनी है, आपको जो है कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देनी है। तो उस तरीके की जो टेस्ट है वो टेस्ट आपके देना बहुत ज़रूरी है तभी आप, क्योंकि वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपकी एक्यूरेसी है, सेकंड आपका जो टाइमिंग, ठीक है। दोनों मैच अगर नहीं होंगे तो फिर अब जो भी आप इतना प्रैक्टिस कर भी रहे हो वो आपका एक्यूरेसी में नहीं आएगा, वो स्कोरिंग नहीं बनेगा आपका, ठीक है। सो टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी उसमें टॉपिक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, यू कैन डू इट। जब आप टेस्ट देते हो, एनालाइज आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कोई भी टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद अगर आप उसको एनालाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, देन देयर इज़ नो यूज़,
नो वहाँ पे आपका टेस्ट देने का जो एनालाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने के बाद कि चलो टेस्ट दे दिया तो अभी टेस्ट में हमने कैसा किया, कहाँ पे हम वीक है, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हमें अभी और काम करना है, टाइम मैनेजमेंट कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है, दैट एवरीथिंग यूल गेट टू नो इन एनालाइज। ठीक है, अब आपको मैन्यूअर की जो मॉक टेस्ट है यू कैन टेक इट, तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे काफ़ी। ये सारी चीज़ आपकी जैसे अगर आपको अब लगता है आप कर रहे हो देन आपको करना है वो सब चीज़ को रिपीट। ठीक है, सो बेसिक्स एंड फंडामेंटल सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट एनालाइज एंड रिपीट। ठीक है, ये करते रहना है आपके एग्जामिनेशन तक, तब तक तो रुकना ही नहीं है। ठीक है, तभी आप compete कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप compete ही नहीं कर पाओगे। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अभी से ध्यान दें उसके ऊपर, अभी से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स कि सर कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपको स्टार्टिंग में नंबर था ना 8828581455, कॉल दैट नंबर, कनेक्ट विद द काउंसलर्स राइट अवे। ठीक है, कमेंट करोगे, विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। अगेन यहाँ पे भी सी वी हैव पुट द नंबर 8828581455, यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल दोनों कर सकते हो, है ना। आस्क योर डाउट्स, जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको काउंसलिंग आपको चाहिए ना, तो आप इनसे बात कर सकते हो काउंसलर से, दे विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑफलाइन अगर इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई एंड वसई, दादर, बोरीवली, थाने सेंटर्स वी हैव, यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर सेंटर्स, डायरेक्टली कनेक्ट विद द काउंसलर्स जो आपके एक बेटर तरीके से आपको वो गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 सेंटर्स हैं, इफ़ यू आर नियर बाई टू दिस सेंटर्स यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे फॉर्म है, लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन पुट योर डिटेल्स एंड आपको एक हमारे कंसर्न काउंसलर से कॉल ज़रूर आएगा। ठीक है, इनका सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से हम और डेफिनेटली हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने का ट्राई करेंगे फॉर होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस। मैनुअल होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है ना, हमारे बाकी के जो चैनल्स हैं उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ज्वाइन मैनुअल एजुकेशन, इंस्टाग्राम पे भी है, एंड यू ऑल्सो हैव ऑन फेसबुक। लाइव लेक्चर ज्वाइन करते हो देन यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रेटजीज एंड मैनी मोर थिंग्स। सो गाइज कनेक्ट विद द काउंसलर्स राइट अवे एंड गेट योर डाउट सॉल्व। सो गाइस आज के लिए इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।